السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو ہمارے اس چینل AAU آن لائن پر استقبال اور خیر مقدم ہے۔ بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ کلاس 10 کا چیپٹر نمبر 4 کٹی ہوئی شاخ اور ان کے مصنفہ قمر جہاں کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور ان کے بارے میں جو بھی سوالات و جوابات آبجیکٹو سوال ہیں اس کو جانیں گے، اور کہانی افسانہ قمر جہاں کا جو افسانہ ہے کٹی ہوئی شاخ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کیا انسان دولت اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی تنہا ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برسوں بعد اپنے ہی گھر واپس آ کر انسان خود کو اجنبی محسوس کرے؟ آج کی کلاس میں ہم ایک ایسے درد بھرے افسانے کٹی ہوئی شاخ کو پڑھیں گے جو پردیس، رشتوں کی دوری اور انسان کی اندرونی تنہائی کی حقیقت کو بے حد خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج نہ صرف ہم ڈاکٹر قمر جہاں کے بارے میں جانیں گے بلکہ افسانے کی مکمل تشریح اور اہم آبجیکٹو کوشچن بھی سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4، کٹی ہوئی شاخ۔ مصنفہ قمر جہاں، ڈاکٹر قمر جہاں۔ جان پہچان، ان کے بارے میں بالکل آسان انداز میں اور ایک لائن میں کچھ لفظوں میں ساری چیزوں کو جان جائیں گے۔ جیسے قمر جہاں کی پیدائش 1951-52 میں ہوئی۔ تو یاد رکھیے کہ ان کا جو ڈیٹیل سے جو مہینہ اور سال ایکچول ٹائم جو ہے، ایکچول ایئر ہے، وہ نہیں دیا ہوا ہے، تو اس لیے 1951-52 میں اگر آپ کا آبجیکٹو کویشچن آتا ہے تو یا تو 1951 آئے گا یا 1952 آئے گا۔ بہرحال آگے دیکھیے۔ گاؤں بزرگدوار، اور والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ ان کے خاندان کے افراد علم و ادب سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے خاندان کے بارے میں بول رہا کہ ان کے خاندان کے افراد لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اور وہ لوگ علم و ادب سے ان کی گہری دلچسپی تھی۔ اسی وجہ سے انہی میں سے ایک ڈاکٹر قمر جہاں تھیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں افسانہ اور ادب میں بہت ہی بڑی کارکردگی حاصل کی، اور اپنے وقت میں عورتوں کو بہت اجاگر کیا، اور عورتوں کو جو استحصال ہوتی ہے، ان کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں سماج میں، ان کو ساری چیزوں کو انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل سے بتایا ہے، اور ان کی بہت ساری کہانیاں ہیں اور بہت سارے افسانے ہیں جسے پڑھ کر لوگ آج بھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پٹنہ منتقل ہو گئے، یعنی کہ بیسک تعلیم حاصل کرنے کے بعد، گھریلو تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو گاؤں میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اس کے بعد وہ پٹنہ آ گئیں۔ اوکے، اس طرح سے افسانہ نگاری 1966 میں، یعنی کہ بہت کم سالوں میں، یعنی کہ 1966 کا مطلب ہوتا ہے لگ بھگ 15-16 سال کی ہی عمر میں انہوں نے کہانی لکھنا شروع کر دی تھی، اور ان کی ایک پہچان بننے لگی تھی۔ انہوں نے پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں MA اور PhD کی ڈگریاں حاصل کی، اور اس کے بعد ہے ان کے افسانے کا عنوان جنون وفا تھا، اور ان کا کیریئر کا آغاز سندراوتی مہیلا کالج بھاگلپور شعبہ اردو سے ہوئی تھی، اور ان کی صلاحیت اور قابلیت کی وجہ سے انہیں آگے چل کر شعبے کا صدر مقرر کر دیا گیا۔ شعبہ مینس اسی ڈپارٹ میں، اردو ڈپارٹ میں انہیں ہیڈ بنا دیا گیا، اور ان کی تصنیف جو مشہور ہے، 3 مجموعے ہیں ان کی 3 مجموعے میں، ایک ہے چارہ گر، اور دوسرا ہے اجنبی چہرے، اور تیسرا ہے یاد نگر، اور یہ تینوں کافی مشہور ہوئے۔ اور یہ کب شائع ہوئے تھے؟ چارہ گر 1983 میں شائع ہوا تھا، اور اجنبی 1991 میں ہوا تھا، جو کہ یہاں پہ پرنٹ میں 93 لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اجنبی چہرے 1993 میں ہوا، اور یاد نگر بعد میں ہوا تھا، کتاب کے چھپنے کے بعد میں ہوا، جس کی وجہ سے اس میں آپ کو نہیں دیا گیا ہے۔ آگے ہے اختر شیرانی کی جنسی رومانی شاعری معیار کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری تحقیق و تدوین کلام اور حرف آگہی آپ کی تنقیدی تصانیف ہے۔ مطلب یہ جتنی کتابیں ہیں یہ افسانہ نہیں ہے، اور ان کا اپنا کتاب نہیں لکھا ہوا ہے، بلکہ قمر جہاں نے ان کتابوں کو تحقیق کی، اور اس میں جو بھی
बेतरतीब से जो था उसको तरतीब दिया। ख़ासकर कलाम अब्दुल्ला हाफ़िज़ मशकी पूरी, जो कि एक छोटे शायर थे, और उनके छोटे शायर होने की वजह से उनकी जो किताबें थी शाये नहीं हुई थी, और वो एक दबी हुई थी, जिसकी वजह से मुसन्निफ़ा डॉक्टर कमर जहाँ ने उनको उनकी किताबों को तरतीब दिया और तहक़ीक़ किया, और फिर उनकी किताबों को इकट्ठा करके शाये करवाया। जहाँ तक अख्तर शिरानी की बात है, तो अख्तर शिरानी एक बहुत बड़े शायर थे, और उनकी किताबों से ही, उनकी बायोग्राफ़ी से ही उनकी पूरी पूरी ज़िंदगी को सर्च किया, तहक़ीक़ किया, और उस पर उन्होंने पीएचडी की थी। और इसी तरह से हर्फ़ आगही आपकी अपनी तनक़ीदी तसानीफ़ है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग कटी हुई शाख, जो कि एक अफ़साना है, कमर जहाँ का बहुत मशहूर है और आपकी 10वीं की किताब में ज़ेर निसाब है। तो इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं, कटी हुई शाख क्या है, इस अफ़साने का मज़मून क्या है, क्या कहना चाहती हैं, और इसमें एक प्रैक्टिकल जो ज़िंदगी होती है, प्रैक्टिकल लाइफ़ में कैसे-कैसे नशीब व फ़राज़ आते हैं, और घरेलू ज़िंदगी जो किस तरह से लोग परेशानियाँ झेलते हैं, उन सारी चीज़ों को ये अपने अफ़साने में लिखा करती थीं। और यही कटी हुई शाख में भी इसी तरह से एक प्रैक्टिकल कहानी है, जो लोगों को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे इस कहानी को अपने ऊपर ढाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ अफ़साना कटी हुई शाख एक ऐसी शख़्स की कहानी है, जो आला तालीम, रोशन मुस्तक़बिल और मादी तरक्की की ख़्वाहिश में अपना वतन, वालिदैन और अज़ीज़ व अक़ारिब को छोड़कर परदेस चला जाता है। इब्तिदा में उसे ये सफ़र आज़ादी और कामयाबी की अलामत महसूस होता है, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ उसे अपनी जड़ों से दूरी का एहसास होने लगता है। ये कटी हुई शाख एक ऐसा अफ़साना है, एक ऐसे शख़्स की कहानी है, जो अपने गाँव में रहकर ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, और वो अपनी मादी तरक्की की ख़्वाहिश रखता था, जिसकी वजह से वो अपना वतन, वालिदैन और अज़ीज़ व अक़ारिब यानी अपने नज़दीकी को छोड़कर, परदेस को छोड़कर चला जाता है। इब्तिदा में उसे ये सफ़र और कामयाबी की अलामत महसूस होता है। शुरू में जब आदमी एक जोश में, जज़्बा में सोचता है कि अब हम यहाँ से जाएँगे तो हम बहुत पैसा कमाएँगे, और हमारे पास ऐशो-आराम की बहुत सारी चीज़ें होंगी, बड़ा-सा घर होगा, कार होगा, एयर कंडीशन्स घर होंगे, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलता है। लेकिन जब वक़्त गुज़रने के साथ-साथ उसे जब एहसास होता है कि अपने लोग दूर होते जा रहे हैं, तो फिर उसे अफ़सोस होता है। अफ़साने का मरकज़ी किरदार अपने महदूद माहौल से निकलकर दुनिया देखना चाहता था। उसके एक दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि वह तालाब के मेंढक की ज़िंदगी छोड़कर बाहर की दुनिया में कदम रखे। मतलब कि उसका एक अपना दोस्त था, जो एक कमेंट उसके ऊपर कमेंट किया कि ये तालाब के मेंढक की ज़िंदगी छोड़ो और बाहर की दुनिया में कदम रखो। चुनांचे वो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क रवाना हो जाता है। उस वक़्त इस वक़्त उसे अपना घर और माहौल एक कैद खाना महसूस होता था। जहाज़ में बैठते हुए वो खुद को खुशियों और कामयाबियों की नई दुनिया में दाख़िल होता हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि वह एक ऐसे पिंडलोम की तरह हो गया है, जो न ज़मीन से जुड़ा है और न आसमान से। परदेस की मसरूफ़ ज़िंदगी ने उसे अपने ख़ानदान से दूर कर दिया। उसे अपने वालिद के इंतकाल और वालिदा की बीमारी की ख़बर तो मिलती है, लेकिन वह उनके पास पहुँच नहीं पाता है। यही एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है। वह समझता है कि मादी कामयाबी हासिल करने की कोशिश में इसने अपनी असल खुशियाँ, मोहब्बतें और रिश्ते खो दिए हैं। उसे सबसे बड़ा क्या चीज़ खलता है कि जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ और वालिदा की बीमारी की खबर मिली, लेकिन वो चूँकि विदेश में था और अपने वालिद के इंतकाल में शिरकत भी नहीं कर पाया, और वालिदा की बीमारी की खबर तो मिलती है, देख-रेख करना, देखभाल नहीं कर पा रहा था, अपनी वालिदा से भी नहीं मिल पा रहा था। तो इसी चीज़ को उसे उसे तोड़ दिया, और वो समझा कि मादी कामयाबी हासिल करने की कोशिश में उसने अपनी असल खुशियाँ, यानी जो रियली हैप्पीनेस होती है, मोहब्बतें और रिश्ते खो दिए हैं। वह खुद को एक ऐसी कटी हुई शाख तस्वुर करता है, यानी कि अब उसे ऐसा लगने लगा कि हम एक बंधन से बंध के जो लोग रहते हैं, अब हम उन लोगों से अलग हो चुके हैं, कट चुके हैं, और हमारी शाख अलग हो चुकी है। और
आगे आगे इसके बारे में और डिटेल से बताया गया है। तसव्वुर करता है जो अपने दरख्त से अलग हो चुकी है और अब दोबारा उससे नहीं जुड़ सकती है। रियल बात ये है कि जब किसी चीज़ को एक बार उससे जुदा कर दिया जाए, अलग हो जाए और उससे काफ़ी दिनों तक उससे अलग होकर रहा जाए, तो एक तरह से उस रिश्ते में कहीं न कहीं दूरियाँ बनने लगती हैं और फिर हर कोई अपने काम में बिज़ी हो जाता है और फिर इस तरह से वो दोस्ती, वो अज़ीज़ व अक़ारिब, वो रिश्तेदारी और वो अपनापन महसूस नहीं होता है। कई साल बाद जब वो अपने वतन वापस आता है, तो सब कुछ बदला हुआ महसूस होता है। बूढ़ी माँ, रिश्तेदार और घर मौजूद होने के बावजूद उसे हर चीज़ अजनबी लगती है। कई साल बाद जब वो अपने वतन वापस आता है, तो सब कुछ वैसा ही होता है, यानी बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, घर भी मौजूद होता है और लोग भी आते-जाते रहते हैं, लेकिन वो मोहब्बत, वो रिश्तेदारी और वो प्यार मोहब्बत उसे नहीं मिल पा रहा था, जिससे वो अजनबियत सा महसूस करने लगा था। वो अपने माज़ी की मोहब्बत और अपनायत को तलाश करता है, मगर उसे महसूस होता है कि अब वो अपने ही घर में परदेसी बन चुका है। मुख्तसर तरीन सवालात और जवाबात। सवाल नंबर 1 है, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कमर जहाँ की पैदाइश 1951-52 में हुई थी। तो आपको इसे याद करना है। सवाल नंबर 2 है, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? जवाब क्या होगा? उनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। सवाल नंबर 3 है, कमर जहाँ का ताल्लुक़ किस ज़िला और गाँव से है? जवाब क्या होगा? उनका ताल्लुक़ ज़िला समस्तीपुर के गाँव बुज़ुर्ग द्वार से है। ज़िला समस्तीपुर के गाँव बुज़ुर्ग द्वार से है। नेक्स्ट है, कमर जहाँ ने उर्दू में एमए और पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की? तो इसका जवाब क्या होगा? उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। सवाल नंबर 5 है, कमर जहाँ ने अफ़साना निगारी का आगाज़ कब किया? जवाब होगा, उन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने में 1966 से अफ़साना निगारी शुरू कर दी थी। कब से? 1966 से। ओके। कमर जहाँ की पहली कहानी का नाम बताइए। पहली कहानी का नाम क्या है? तो इसका जवाब होगा, उनकी पहली कहानी का नाम जुनून वफ़ा है। ओके। सवाल नंबर 7 है, जुनून वफ़ा किस रिसाले में शाये हुई थी? जुनून वफ़ा किस रिसाले में शाये हुई थी? तो इसका जवाब होगा, ये कहानी माहनामा सुबह 9 में 1966 में शाये हुई थी। एक कहानी ये जो है कि एक माहनामा निकलता था सुबह 9 के नाम से, उसी में 1966 में शाये की गई थी। सवाल नंबर 8 है, कमर जहाँ ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? तो इसका जवाब होगा, उन्होंने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ सिंधरौती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से किया था। तो इसे आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे याद करना है। सवाल नंबर 9 है, अफ़सानवी मजमूआ चारागाह कब शाये हुआ? तो इसका जवाब क्या लिखेंगे आप? अफ़सानवी मजमूआ चारागाह 1983 में शाये हुआ। 1983 में शाये हुआ। सवाल नंबर 10 है, 1991 में शाये होने वाले कमर जहाँ के अफ़सानवी मजमूए का नाम क्या है? 1991 में शाये होने वाले कमर जहाँ की अफ़सानवी मजमूए का नाम क्या है? तो इसका क्या जवाब होगा? 1991 में शाये होने वाले अफ़सानवी मजमूए का नाम अजनबी चेहरे है। ओके। तो ये आज का एक तफ़सीली गुफ्तगू थी जो मैंने आपसे किया है, और ये सवाल लास्ट में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया है, ताकि आपको इस कहानी का जो सवाल और जवाब है और इस अफ़सानवी मजमूआ जो है कि डॉक्टर कमर जहाँ के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, उसे कुछ याद भी हो जाए। तो चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मुख्तसर सवालात और तवील सवालात और जवाबात लाएँगे और उसे डिटेल से समझाया जाएगा। ओके। चलिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।